Hi you guys, welcome to a new video. So you guys have read the title of the video. Okay, something very unfortunate happened with us, and it's been 3 days since we are grieving this loss, or it was not easy at all. I'll discuss about this later on in the video. Aaj to I'm ready to go to the hospital because since last 1 week I've been suffering from chronic piles and fistula at the same time. For this, first we went to Fortis. Uske baad yesterday we went to Apollo because the quality of surgery can't be compromised at all. So we wanted to consult two different doctors, or we have finally decided to go with the Apollo one. Today I have to do certain tests. Doctor has mentioned more than 6-7 tests. इसको ये सब tests को पूरा कर देना होगा. Then this will show कि my body is ready to take the surgery ahead or not. So CBC, LFT, KFT, RBS, HIV, HEV, I don't know ये सब क्या क्या tests है. Also mine is stage 4 chronic piles with fistula, so it's very much, so it's very much painful. अभी बस वही ये सब टेस्ट करने जाऊँगी. I'm doing in Apollo Cradle and Children's Hospital in Greater Noida. Let's go to the hospital. I'm done with all the tests, or submit normal. Hi you guys, it's the next day, or आज रात. Tonight I'm going to be admitted. तो उसके लिए पूरा ready हो गया हूँ. I'm just picking my stuffs. We have to reach hospital in next 40 to 45 minutes. तो we are almost ready. तो we are almost ready for that. और report वगैरह सब चीज़ टेस्ट करने के बाद में my reports are all normal. Now my body is ready to undergo surgery. So I have to pack my stuffs. I'll be staying 2 nights 2 days in the hospital. और ये पहली बार लाइफ में मेरा सेकेंड एडमिट है वैसे तो, बट दिल्ली में पहली बार. और सर्जरी तो इट्स माई फर्स्ट टाइम. कभी सर्जरी करके नहीं देखा. आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स, वुंड्स, ब्लड्स, और वो सभी होने जा रहा है अभी. लेट्स पैक माई स्टफ्स. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू पैक, तो इसलिए आई एम वेयरिंग माई नाइट सूट. ये एक कम्फर्ट कपड़ा है, हॉस्पिटल जाने के लिए भी सही रहेगा. हॉस्पिटल में तो दे विल बी प्रोवाइडिंग मी क्लोथ्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऑपरेशन वाला कपड़ा तो होता है. और वैसे आई एम कैरिंग अनदर पेयर ऑफ night suit. This is also from H&M, or I'm taking this gali also. It's one of my favorites. His mother gifted this to me जब मैं पासीघाट पहली बार आई थी, तो it's very special to me. I'll take this to the hospital as well. I'll also pack some of my skin cares, or उतने ही है. He's also going to pack. We are all ready. ये सामान को बुक लिया. All the best. This is how the room look like. और ये है सोने वाला गर्जन के लिए. ये टेबल, देन कपड़ा सामान रखने के लिए भी तो है. हॉस्पिटल में आके हम दोनों रूम थोड़. और यहाँ पे चेयर एंड देन टेबल. टीवी भी तो है. Then this is another bed. पानी. It's time for my dinner. पहली बार वैसे ऐसे हॉस्पिटल में हूँ, मतलब और अच्छा फैसिलिटी है ना. एक्चुअली आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट इनफ कि लाइफ में इतना बीमार हुआ नहीं है अभी तक. और लास्ट टाइम जब बीमार था, it was many years ago when I was in class 2, और वो सेपा हॉस्पिटल में एडमिट था. एंड आफ्टर दैट here I am after 15-16 years. तो इसमें हॉस्पिटल का डिनर आ गया है. It is by the dietitians, तो पैकेज में जो जितना पैसा दिया उसके अंदर में आ जाता है. By end of this video I'll also let you guys know कि I'll let you guys know transparently कि कितना गया है पैसा. Let's see कि डिनर में क्या है. वैसे मैंने मुझे भी नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है. इस दाल, और यहाँ पे ये एक्चुअली मैं बीमार के अकॉर्डिंगली क्या सिर्फ दाल ही दिया है क्या.
And this is कुछ तो है ये। वो ये दाल नहीं एक्चुअली कुछ है ये। दलिया है बस। दलिया yes. Dinner is done. Now I have to change to hospital ka kapra. मैं सोच के डाला रहा। Done. Macam इसका मतलब है इतनी हो जाएगा should have called me यार हम तो सुन के हम उड़ के आया वो भी Good night. Going to the operation center. all the best. So I'm done with the surgery. This is post surgery और अभी तक तो I'm not feeling anything down there. It was very smooth. I was sleeping throughout. It took how much time? Almost 1.5 It was very nice. Sensation हो रहा था. एक तो वो डायलॉग नहीं है क्या? Sensation जैसे जरा उसे हो रहा था. And for next 6 hours I can't eat anything तो भूख लग रहा है. बस drink. No drink also. no water no food चिन्मन और मेरी ड्यूटी है। Here's my morning breakfast. ये दूध दिया है, sugar नहीं डाल के. And this is I don't know सूजी या फिर दलिया कुछ होगा है. It's the next day now and it's been more than 24 hours. I was on liquid fasting, so I wasn't allowed to have anything rather than ORS and coconut water. So abhi here's my breakfast. This is I don't know exactly what is this. I think it's suji and suji with hot milk. So by now today like the pain has decreased. Today the pain is lesser than it was yesterday. So I'm feeling a bit better but not really क्योंकि pain अभी तक भी बहुत है. I'm not even able to poop क्योंकि वो जगह में सिलाई करके रखा है. And this feeling is very uncomfortable because you feel like you want to poop but you can't poop. वो है. I'm gonna have my breakfast. Also my friend is gonna be coming in an hour. Ipsa Cake Dosas is coming to meet me. Back home now. It's a story time. I'm gonna be telling you guys about my recent surgery experience और कैसे रहा है, कितना रुपया गया है, and also another really unfortunate thing is my cat Snowball passed away. So I'll be telling you guys about both of the incident.
Piles I was having since I was in class 2 or 3, but इतना duration maintain कर पाया because I was somehow maintaining my diet. तो उसके वजह से इतना लंबा खींच पाया, and I knew कि someday or other it has to come out. तो वही एक week पहले I went to the doctor कि इसमें दर्द शुरू हो गया था. Then doctor said कि I had piles and fissures both, तो उनका surgery होना था. I consulted with 2 doctors. तो फाइनली सेकेंड वाला डॉक्टर के साथ में वी वेन अहेड. सर्जरी के टाइम इट वाज टोटली पेनलेस क्योंकि नीचे में एनेस्थेसिया दिया गया था. एंड पोस्ट सर्जरी इट वाज पेनफुल, स्पेशली वही दिन वाला जो सुबह को सर्जरी हुआ और जो शाम तक जो पेन हुआ. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिसकम्फर्ट, मोस्ट अनईजी एंड पेनफुल फेज ऑफ माई लाइफ. क्योंकि सर्जरी के बाद में वो वाला पार्ट में जो एक चीज़ घुसा के रख देते हैं, इतना लंबा कॉटन टाइप का कुछ चीज़, वो चीज़ घुसा के रख देता है जो बाहर से थोड़ा बाहर में आधा होता है, अंदर आधा होता है. तो इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. At that time I couldn't even use my phone, I couldn't sleep. I was just like फ़ोन को इसलिए देख रहा था ताकि कब 4 बजेगा. तो for 8 hours I had that thing inserted. बहुत अनकम्फर्टेबल था वो. अभी तो I'm having semi solid diet, खाना को भी एकदम ग्राइंड करके खा रही हूँ. I'm having odd, मतलब ज़्यादातर स्मूथी खा रही हूँ. And when it comes to the cost of the surgery, it took me 1.5, मतलब 1,50,000 approx. Post surgery I'm still having that pain. अभी पोटी करने के लिए भी दिक्कत होता है, but वो समय के साथ में ठीक हो जाएगा. And in this whole thing, my parents, they are also very concerned about me and they couldn't be with me at this time, but they know कि my boyfriend is there with me and वो लोग को मालूम है how he is. तो they are like, वो चीज़ वो लोग को relief देते हैं कि as long as he is there with me, he is gonna take care of me. तो I'm very grateful for all this. अभी के लिए तो बस इतना ही, but in the future vlogs I'll tell you guys कि recovery कैसे चल रहा है and how I'm maintaining post my pile surgery. उसके बाद next coming to my pet Snowball's date. We were already discussing about the surgery date. सर्जरी का डेट वगैरह भी फिक्स हो गया था and like 1-2 दिन ही बाकी था सर्जरी के लिए. उससे पहले Snowball passed away और it was due to a sudden illness. We have tried our best to save Snowball but सेव नहीं हो पाया. इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम सेव नहीं कर पाए स्नोबॉल को. तो वो चीज़ बहुत दुख था. मतलब 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो सुबह होता है अंधेरा वाला फेस, वो समय में स्नोबॉल पास अवे. वी वर कम्प्लीटली साइलेंट आफ्टर दैट. वी वर लाइक कि अभी बॉडी को इतना देर भी नहीं रख सकता है एंड इसको मतलब बरी करना होगा. एंड नाउ वी आर नॉट इवन इन अरुणाचल में होता था अपना घर के साइड में, एकदम टाइम लेके, अच्छा से टाइम लेके वो करना था, उसको बरी करना था, उसका लास्ट रेट्स को अच्छे से करना था. बट लाइक वी लिव इन ए सोसाइटी यहाँ पे, और सोसाइटी का बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है और यहाँ पे हर एक मिट्टी का अपना ओनर है. तो नो ओनर वांट्स कि उनके मिट्टी में जाके हम ऐसे दफनाएं. तो वी वर वेरी कन्फ्यूज व्हाट टू डू विद इट. अराउंड 2 to 3 AM इन द मॉर्निंग वी टुक स्नोबॉल इन ए कैरी बैग, उसका डेड बॉडी को लेके. मतलब एट फर्स्ट तो रोना भी नहीं आया बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली अनबिलीवेबल. ऐसे लग रहा था जैसे बुरा सपना है, क्योंकि जब भी मेरा सोती हूँ स्पेशली रिसेंटली आई वाज हैविंग लॉट्स ऑफ बैड ड्रीम्स. और वो समय में भी जब भी सपना में देखते हैं इतना कतरा टेंशन में होता है ना, हमेशा उठ के देखते हैं तो इट वॉज ऑलवेज ए ड्रीम. मतलब और उसके बाद बहुत रिलीफ फील करता है. तो वो समय भी लग रहा था कि वो सपना ही होगा. तो फर्स्ट में इतना वो इतना दुख नहीं आ रहा था, इतना रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि आई वाज स्टिल थिंकिंग कि आई एम ड्रीमिंग अबाउट इट. तो 2-3 बजे को विद हेवी हार्ट्स वी कैरिड स्नोबॉल. ये सोसाइटी के बाहर में जाने के बाद थोड़ा पार्क टाइप का है वो, तो वो पार्क में एक गाची है एंड गाची के नीचे में उसको मतलब उसको थोड़ा सेट भी मिलेगा. सेटिस्फाइंगली नहीं कर पाया उसको, क्योंकि चुप के करना पड़ रहा था ये सब चीज़ को. एंड वो सब करने के बाद में उसके ऊपर में बहुत बड़ा से पत्थर भी रख दिया मिट्टी के ऊपर में. फिर क्यों बोले से उनके डॉग्स कैन कम एंड स्टार्ट डिगिंग दैट एरिया. सो उसके ऊपर में हैवी स्टोन रख दिया ताकि इवन इफ़ दे वांट टू डिग दैट थिंग आउट, वो मतलब नहीं कर पाएगा. तो आफ्टर दैट वी बोथ वे कम्प्लीटली साइलेंट. ना यहाँ में आके नहाया, सो गया. That time also we didn't talk to each other, like we were completely silent. We couldn't bear that loss. रात के बीच I was trying to sleep after that, but I couldn't sleep. I woke up, I started crying like crazy. मतलब एकदम रात को इतना खतरा सा रोने लग गया, because वो रियलाइजेशन एक ही बार में नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है रियलाइज़ करने के लिए. We both were like crying together after that, or next day maybe we were crying. Snowball तो he was there with me since last 3 years. और उसको
अपना बच्चा जैसे उसको हमेशा पाला है, तो अपना बच्चा खो दिया जैसे वाला लॉस था फॉर अस। तो नेक्स्ट डे तो वी वर कम्प्लीटली डिप्रेस्ड। तो सुबह जाके स्नोबॉल का फिर वो जहाँ पे उसको घर है वो जगह को जाके वी ऑफर्ड सम फ्लावर्स, और ये सब चीज़ को मैंने बिल्कुल भी नहीं खींचा है क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव, माई फ़ोन कैमरा कांट टेक दैट। और उसके बाद फिर 1-2 दिन में सुबह शाम करके वी वेन वो जगह में फूल चढ़ाने के लिए। अभी तो वैसे मेडिकल में था सो वी कुडंट गो, बट फिर आज शाम में वहाँ चलेंगे। तो somehow with time we have decided कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि we all have to go someday or other। तो वही ये सब चीज़ें एक दूसरा को समझा के we started feeling better about it, we started accepting what happened and trying to move on with life। क्योंकि लाइफ तो जितना जिएगा, किसी का भी लाइफ इतना स्मूथ नहीं हो सकता है, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। और जितना खराब से खराब लाइफ में गुजरने से भी इवेंचुअली वी हैव टू मूव ऑन विद लाइफ, वी हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल एट दिस पॉइंट, और बस लाइफ को आगे बढ़ने में ध्यान देना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी वो पार्ट में ख़राब हो गया। तो अभी एटलीस्ट लाइफ में जो चीज़ बचा है वो चीज़ को लेट्स एम्ब्रेस एंड लिव इन इट जब तक है ये दुनिया में। एज अ पेरेंट्स कैसे लगता है जब खो जाता है वो चीज़। वो बस उतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली मैसेजेस जो ये सर्जरी के लिए भी एंड ऑल्सो फॉर माई पेट। वो दोनों चीज़ रिसेंटली बहुत बड़ा चीज़ हुआ, तो इट वॉज टू मच फॉर अस टू टेक ऑन इमोशनली एंड फिजिकली। जितना भी मैं बोलूँ कि आई हैव मूव्ड ऑन, बट समहाउ इनसाइड आवर हार्ट वी ऑलवेज हैव दिस थिंग, मतलब जो हर्ट होता है। तो उतना ही था, बस ये वीडियो के लिए अपडेट देना था बिकॉज आई बीन अपडेटिंग अबाउट एवरी लिटिल थिंग्स इन माई लाइफ एंड थिंग्स लाइक दिस ऑल्सो नीड्स टू बी शेयर्ड। तो उतना ही था। आई होप आई विल रिकवर एंड I hope I'll recover from piles and also be able to completely move on from what happened recently. उतना ही था बस। Bye bye, see you in my next one.